Hello, friends. Welcome to another episode of HR to CHRO podcast series. And today we have Dr. Lokesh Dutt Sharma with us. He is a person with very wide range of experience, around 30 years. And he started his career with Shreyas Industries. Then he moved to MG Enterprises, then Rana Mohinder Papers, Narayangarh Sugar Mills, Valley Iron, JB Rolling Mills, Vishal Paper Tech, Tirupati Group, Sambhav Steels, and now he's CHRO of GR Group of Industries. So, in his entire experience, he specializes in transforming promoter led companies to become more employee friendly, to set up the HR base and transform the company, taking the company to the next level. So, welcome, Lokesh. Thanks for giving us time. Thank you very much for calling me, and it is very my pleasure to be with you. Thank you, sir. So, Thanks. to start with, Lokesh, why HR? Why did you decide to start in HR, especially because your experience has been in manufacturing and HR, or as we call IR, in manufacturing is a tough job. I mean, rather than sitting in a air-conditioned office like in a service industry, to actually go out in the at the factory level and handle the workers, the blue-collar workers, is not that easy relatively. So, why did you decide to choose HR? So basically, I am from a commerce background. So initially, there was no pressure for me from my parents or from my family to do any job or all that. When I started my career in 80s, so there was not much pressure. I come from a farmer background, so we had a lot of land and all that. तो पापा सेट कि कोई बात नहीं, जो करना है करो, अगर कुछ करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी हमारे पास जमीन है. So one of my friend was working as a accountant with some little company. One day he said, "Well, what are you doing?" "Well, I'm doing nothing, just passed out and enjoying life." Well, why don't you join us? Okay. So I asked my father कि what should I do? बोले यार तुम enjoy करो, जाओ देख लो, अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं तो आ जाना वापिस. So I joined that company, and salary was around 1700. Okay. So I was happy. I was getting money. Pocket money was not needed from father. Now I become self-reliant. One day I saw advertisement in the paper. Tribune newspaper was very famous at that time. That a company in Punjab, just Shri Disha Paper, Shriyan's Group of Industries, they are uh, recruiting some management trainees. So I said to that my friend that I am going to apply this and I will get this job. तो ही सेड यार तेरे जैसे लल्लू बहुत घूमते हैं, ऐसा कुछ नौकरी मिलता है क्या? या ठीक है. So I prepared myself and went to the interview. And basically, I was looking for the commercial side, not the HR side. When I went there, around 10, 20, 10, 12 people were there. And I think two or three vacancies were. So I reached there. First of all, I got lost my confidence. That so many people are coming and they were very tall, handsome, and all that. Because that was a Punjabi company. It was in Punjab, basically, Ropar district. So I lost confidence. कि यार यहाँ कुछ नहीं होगा. I have wasted my time. Then I was called for the interview, and they just asked me only one word. Tell me the spelling of loitering. Just I that. prepared so much for lot of books I have gone through, and you understand now what how you prepare for the first Correct. interview. Correct. So he said, "Okay, Kaka, you may go now." I am shattered again. कि यार इतना पढ़ा, इतना लिखा, and I have come across. Basically, I belong to Himachal. इतना दूर से आया, रात कहीं ठहरा, आया, कुछ पूछा भी नहीं, आया प्रिपेयर्ड सो मच. तो उसके बाद इंटरव्यूज हुए और लंच ब्रेक वगैरह एवरीथिंग डन. फिर दे आस्क कि भाई आपका कितना एक्सपेंडिचर हुआ. यू दे रिफंडेड अस द एक्सपेंडिचर. देन वी वर गोइंग आउट. दे सेड कि ओके वी विल लेट यू नो. So we were going out and the one person came behind and he asked, Sharma ji,
that time I was not Sharma ji, I was just Lokesh. So I have turned around and looked, okay, who Sharma ji? So then he just put my shirt. और के स्कूल आ रहे हैं आपको. I went to the sir. He asked me, okay, we have selected you. So how much time you need to join us? So I said, sir, I will need at least 1 month. बोले नहीं, 15 दिन में ज्वाइन करना होगा. And सैलरी कितना मांग रहे हो? At that time I was getting 17 to 1800 rupees per Correct. month. Correct. So I said 3000 is good. बोले 3000? So I got scared. I was thinking कि और थोड़ा डाउन कर लेते हैं. But फिर they called their personal officer. उस टाइम P&A होता था, HR नहीं होता था, personal and administration. Correct. They called कि भाई देखो भाई ये किस ग्रेड में आ रहा है. तो he said कि ये 3800 के ग्रेड में आ रहा है, and the total salary would be around 6700. So they give me the offer on the spot and asked me to join. 6700 plus accommodation plus bus facility, everything was there. And That this was was in which year, Lokesh? This was in which year? 87. So that was very good money. 6787 Yes, was very, very yes. good money. It was surprising for me because I was expecting around 3000, not more than that. Correct. I was more than happy. So that is how I went to this, and they put me into HR, personal department, as a management trainee in a personal department. There I performed well. I worked hard. So in between, what happened? The differences between my boss. My boss was Mr. Gupta. He was from Rajasthan. He has got some differences with our management. So they start calling me. Okay. Instead of my boss, they start calling me for meetings and for any orders or for any executions. So one day I asked my boss, sir, this is not good. You should go there. They are calling me. It is not fair. So he said कि यार you do, पंडित जी, you do whatever you want to do. अगर वो आपको बुला रहे हैं तो आप जाइए. It is not your fault. I am not angry with you. They are calling you, you go. And I was third, fourth position in the ladder. Look, after my boss, there was a senior manager, GM. I was just assistant manager. And who interviewed you? Your boss interviewed you, or somebody else had interviewed you? Boss, my boss. Achha, your boss only had interviewed you. Yes. So one day my MD said, our MD used to come once in a month. So he called me, Mr. Sharma, whenever I come, you will attend the interview, your boss will not. And if he leaves us, then you will be the department head. So you must have impressed them with your hard work and with your good work, no, Lokesh? Execution, basically, execution. Okay. He has given me the planning and asked me to execute in this much time. So I was able, but it was not alone me, it was team basically. But he thought he is doing everything. So I got more motivated, or in between my boss got some offer and he left. So our MD tried to place me there. But there came the resistance from other. यार ये कल का बच्चा है, हमारे सामने थोड़ा बैठेगा. तो other cross-functional teams were headed by the GMs, vice presidents. Correct. And I was assistant manager at that time. So they said no, we will go for some another person. We will hire another person from outside. Then I got somewhat demotivated और disheartened कि यार सही नहीं है. तो फिर MD me again called me, मतलब बेटा आप चिंता मत करो, I will find, मतलब आज नहीं हुआ तो कल को तो मैं करूंगा, और आपको छोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, आप जैसे काम कर रहे हो वैसे ही करते रहना है. तो ओके सर उसमें और कुछ तो कह नहीं सकते थे. तो एक बार क्या हुआ, मैं रिजाइन किया तो डिडंट एक्सेप्ट इट, और सेड के नहीं भैया आपको काम करना, आप नहीं जा सकते. तो ऐसे मतलब ये दिस इज माय जर्नी इनटू HR. So what is very impressive is that you were able to influence or impress right up to the MD level with your execution. So could you give us some examples on how
your execution ability, you were able to impress the top management. Yeah, one thing what happened, they had an textile unit also in Ludhiana. Okay. And frequently HR managers were being replaced there because of manpower shortage. Okay. So CMD said, Mr. Sharma, you come to that place and sit there and sort it out. We are losing customers, production targets are not being achieved. So I had no idea about textile. Basically, I was working with paper industry. So I had very good idea by that time with working with paper industry, how we can do the good things for it. But he said, so I had to go. I was very reluctant. So I asked my chief executive उस time होता था. Chief executive was the boss. जैसे आज की डेट में हम सीईओ कहते हैं ना, उस टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव होता था. तो मिस्टर बीडी शर्मा वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव. आई सेड सर, एमडी हैज कॉल्ड मी टू अनदर इवेंट एंड प्लीज गिव मी द परमिशन. तो ही सेड, टाइम से आएगा ठीक है, नहीं तो और रख लूंगा भैया, देख ले. वहां पे 2-3 बदल चुका है पहले. मैं कहा सर एमडी हैज आस्क्ड तो आई विल हैव टू गो. बोले यस 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 गो और माय बेस्ट विशेस or try to do whatever you are doing here, do the same thing there also. So I went there and I reached around 10:30 or 11. तो आज गेट पे पहुंचे, बोले साहब बहुत गुस्सा है, आप लेट हो गए. आप शर्मा है, मुझे कोई जानता नहीं था वहाँ. तो बोलते आप शर्मा, एमडी साहब बहुत गुस्सा में है, वो आपको 9 बजे आपको यहाँ पहुंचना था. मैं कहा सर ठीक है. उसके बाद रिसेप्शन पे गया तो मैडम बहुत परेशान कि बॉस इज वेरी एंग्री कि वो आप पहुंचे नहीं हो. ओके, यू जस्ट टेल एमडी दैट आई हैव कम. वो भेजो भेजो जल्दी भेजो. और दे स्टार्ट शॉटिंग, व्हाई आर यू लेट. मतलब सर, मैंने कहा सर आई हैड कम बाय बस, और रास्ते में बस का टायर पंक्चर हो गया था. दैट वाज एन एक्सक्यूज, दैट काइंड ऑफ नथिंग हैपेंड. तो यू कुड हैव कॉल्ड मी, आई वुड हैव सेंट यू द व्हीकल. मैं सर आई डिडंट हैव, उस टाइम में ये मोबाइल फोन तो होता नहीं था. करेक्ट. तो मेरे फोन नहीं था, वहां पर जंगल में बस खराब हुआ था. ओके. और उसके बाद वो सारी डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाया. बोले मिस्टर शर्मा विल लुक आफ्टर एचआर, और ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे, और इनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो चाहिए. तो मैंने कहा सर, मैं मेरे से पूछा क्या आपका व्हाट इज योर एक्शन प्लान. मैं फर्स्ट मी लेट मी गो टू द डिपार्टमेंट, आई विल सी व्हाट इज द प्रॉब्लम. बेसिकली आई विल गो टू द रूट कॉज. तो आई वेंट टू द टाइम ऑफिस. तो हमारा जो लेबर ऑफिसर वहां होते थे, यू मस्ट बी नोइंग दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैव द लेबर ऑफिसर. तो मैं उनसे पूछा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. तो दे सेड कि प्रॉब्लम 2 है, वन इज व्हीकल एंड सेकंड इज कैश. आई गॉट इनटू इट. तो उन्होंने कहा कि जब हमको जरूरत होता है उस टाइम हमको गाड़ी नहीं मिलता है, गाड़ी नहीं मिलता है, और लेबर लाने के लिए जब हमको गाड़ी चाहिए तो उस टाइम गाड़ी नहीं मिलता है. एक प्रॉब्लम ये है. दूसरा, ऑफिस 5 बजे बंद हो जाता है, शिफ्ट होती है 6-7 बजे खत्म. तो जो हम कैश में आदमी लेके आते हैं उनको उस दिन कैश नहीं मिलता है, और नेक्स्ट डे डोंट कम. अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करा दें तो देर इज नो प्रॉब्लम, नो लेबर इशू, नथिंग. सो ओके. तो मैं गॉट इट. मैंने पूछा कि एस्टिमेट क्या रहेगा कैश का. तो दे सेड कि 10,000 इज इनफ. जितना मेरा खर्च होगा उतना हम हिसाब दे देंगे, और पैसा लेके मेरे पास 10,000 रुपए हर रोज मेंटेन रहना है टाइम ऑफिस. आप इतना करवा दीजिए. अभी तक कोई करवा नहीं पाया, इसलिए दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट. आप ये इतना करवा दीजिए, उसके बाद आप ऑफिस में बैठना आराम से, कंपनी आराम से चलेगी. तो ठीक है. मैं गया था, हमने 3 बजे फिर मीटिंग बुलाया था. बोलते बुलाया आपने. हाँ, बट यू हैव सीन, थोड़े रोबीले किस्म के थे, ओसवाल थे. व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड. सर, दिस इज 2 प्रॉब्लम्स. इफ इट इज सॉर्टेड आउट देन वी विल बी एबल टू uninterrupted manpower supply will be there. तो ओके डन. उन्होंने अकाउंट हेड को बुलाया कि इनको 10,000 रुपीज अभी दे दो. तो वन, और ये टाइम ऑफिस में रखेंगे, हिसाब देते रहेंगे, उसका जितना भी हिसाब रहेगा वो करते रहेंगे. फिर गाड़ी का इशू था. वन ब्रिगेडियर वाज द एडमिन हेड देयर. अब ब्रिगेडियर से बात करना, ब्रिगेडियर को कन्विंस करना, यू अंडरस्टैंड के हाउ इट्स डिफिकल्ट. तो ही सेड, ब्रिगेडियर, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स the owner of the transport is Lokesh. You will not enter into it. Use vehicle as per your convenience. तो उसमें उस टाइम एक गाड़ी आती थी टाटा की.
माजदा पता नहीं कुछ बोलते थे उसको, मुझे आई डोंट रिमेम्बर। वही गाड़ी आती थी, बड़ी बहुत फेमस गाड़ी थी, तो वो गाड़ी एलोकेट कर दी गई टाइम ऑफिस के लिए। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड देयर वाज नो लेबर इशू, प्लांट वेंट वेरी स्मूथली अराउंड। देन आई वेरी नाइस, this was the scenario, मतलब they had so much confidence in me that I can sort out anything. वेरी नाइस. So what about some of the times I'm sure you would have managed labor issues, real labor Yes. issues. So some example of any such incident, Lokesh. अमित जी, दो तीन चीजें ऐसी रहती हैं, मतलब आप होता क्या है, एक बार एक स्ट्राइक हो गई हमारे यहाँ पे, Mm-hmm. तो मैनेजमेंट वाज वेरी अनहैप्पी, और डिपार्टमेंट बोले पुलिस बुलाओ, ये करो वो करो, इसको इनको इनको सबक सिखाओ, ये करो। तो मैंने कहा नथिंग डूइंग, आई विल टॉक टू देम, Mm-hmm. उससे हम सोल्यूशन हो जाएगा। बोलते तुम्हारा रिस्क है, यू सी, मतलब वो धमकी भी आता है ना फिर उधर से, Correct, कि अगर correct. नहीं ठीक हुआ तो फिर यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। मैं यस, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। 2 days आई वाज सिटिंग विद लेबर यूनियन, Mm-hmm. और लेबर यूनियन के साथ बैठ के मैंने सॉर्ट आउट किया, जैसा मैनेजमेंट चाहती थी वैसा सॉर्ट आउट किया। Mm-hmm. I have followed the policy or framework given by the management. Mm-hmm. Within that framework, I convinced the trade union leaders and they start working. और उससे बाद ऐसा माहौल वहां पे बन गया था कि whenever एनीथिंग, मतलब ये आप एक बात समझें कि उनका अगर प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होगा तो पूछ के जाते हैं साहब किसको बताना है। Very nice. So यस, what was the reason? How were you able to convince them? आपने क्या किया? तो आपको ना, मतलब दे शुड हैव, मतलब यू शुड हैव क्रेडिबिलिटी, Okay. दे शुड हैव ट्रस्ट, कि ये आदमी अगर कुछ कह रहा है तो ये Mm-hmm. इसको करेगा। Mm-hmm. तो और वो हो भी गया, मतलब the points or things agreed during those meetings, I had the approval from the management within that framework, but they are demanding much more, but I brought them down to the framework, okay, this I can do for you. So that building of that trust, building of that credibility, how much time does it take and how to build that? See, especially in today's time, आजकल सब Gen Z is a buzzword, you know, it's very difficult to handle Gen Zs because जी जी। they don't trust you or you are not able to, the senior leaders, they are not able to build that credibility. So what are the essential points using which a young professional who's watching this podcast can take some notes on how to build trust, how to build credibility? What are those 3, 4 important points to do that? फर्स्ट थिंग तो आपको पता क्या करना पड़ेगा अमित जी, आपको जैसा वो फोर्थ मतलब पब्लिक सोच रही है वैसा आपको सोचना पड़ेगा। आप ऐसा, मतलब मैं सोच रहा हूँ उसको मैं एकदम जाके उसको मतलब तानाशाही स्टाइल में उसको इम्प्लीमेंट कर दूं, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको उनके नजरिए से सोचना पड़ेगा। और Okay. आपने देखा होगा ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, एवरी डे वी फेस प्रॉब्लम्स। तो आप, एक आदमी आता है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, दे कम टू यू, और आप कहते हो उसके ऊपर शाउट करोगे तो नहीं चलेगा, Correct. वो और ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा मेरा जो प्रिंसिपल है, आई थिंक इट इज फॉर एवरीवन, उसमें अपन करते क्या कि उसको बोलते हैं भैया बोलो, उसको बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं और बोलो बोलो आप जितना बोलना है, वो जितना उसका भ्रास है ना वो सारा भ्रास निकाल लेता है। एंड देन वी स्टार्ट कि भैया ये मतलब इन ए काउंसलिंग वे और इन ए गाइडिंग वे, वट एवर वे यू फाइंड प्रॉपर, वो आपको साइकोलॉजी उसकी समझनी पड़ेगी कि उस टाइम में वो क्या चीज को समझ सकता है, व्हाट विच थिंग कैन गो वेल इन हिज माइंड। तो वो साइकोलॉजी को समझ के आपको उसके हिसाब से उसको करना पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है कि कई बार क्या होता है, एचआर ना बड़ा होता है कि मेरे को ये करवाना ही है, तो वैसा नहीं होता है। तो यू हैव टू टेक एवरीबॉडी अलोंग। Correct. अब जैसे मुझे कुछ काम करना था, तो कोई एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन था, तो आपको पता है जब भी कोई नया पॉलिसी आता है तो पीपल रजिस्ट, वो तो ठीक है। अवर अवर ग्रुप इज 25 26 तो 30 years ओल्ड, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ करना है तो ओल्ड पीपल विल ऑलवेज कम विद रेजिस्टेंस। तो व्हाट आई डू इज, मैं उनको इन्वॉल्व करके उनके थ्रू शुरू करवा देता हूँ कि सर दिस इज माई आइडिया और यू प्लीज लीड इट। Okay. अल्टीमेटली व्हाट इज द गोल, we I have to got that the thing done na? So either I do or he do, Very nice. things is the same, Can result you is the can you give same। an example of this, Lokeshi? इसमें अभी क्या हमारे यहाँ पे, इन माय प्रीवियस कंपनी,
मैं जो पुराने लोग थे तो एमडी ने मुझे कहा यार वो मेरा बीपी जो है ना, जो पावर प्लांट वाला बीपी है ना, वो तो सुनता ही नहीं, और जो रोलिंग मिल वाला बीपी है उसके वो तो बात ही नहीं ढंग से करता है। तो आप आई वाज ब्रिंगिंग इन सम एचआर आईएस सिस्टम्स, वहां पे कुछ ऐसा था नहीं, मैनुअल था सब, वो एपी वाला सिस्टम था, तो मुझे बायोमेट्रिक्स लगाना था वहां पे। और बायोमेट्रिक्स भी ऐसे लगाना था कि मेरा टाइम सेव हो। एक होता है ना, आपको पता है, जैसे अपना स्टील स्टील कंपनी होती है, पेपर मिल होती है, शुगर मिल होती है, इनका कैंपस ना बहुत बड़ा होता है, मतलब 400 एकड़, 500 एकड़, 800 एकड़ ऐसा होता है, और डिविजन अलग 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 जगह पे होते हैं। तो आपका मेन गेट से आदमी अंदर हो गया तो अपने डिवीजन तक पहुंचने में उसको 1 घंटा लगता है। ओके। और अगर वो कहीं कैंटीन कंट्रोल में बैठ गया तो हो सकता है 1.5 घंटा भी लग जाए। तो आई वांटेड टू सेव दैट टाइम, ओके। क्योंकि वो आ गया गेट पे, उसने मार्क कर लिया, उसके बाद उसकी मर्जी हो कब वहां पहुंचेगा। करेक्ट। और ज्यादा एजुकेटेड लोग होते नहीं है, मतलब आप यूज थी ना, करेक्ट। ब्लू कॉलर में ब्लू क्या कॉलर होगा। वर्कर्स, करेक्ट। हाँ, तो मैंने क्या किया कि एक मास्टर जो बायोमेट्रिक्स था वो गेट पे लगा दिया, उसके बाद उनकी वर्क प्लेस पे मैंने बायोमेट्रिक्स लगा दिया। तो आपको पता है फिर रेजिस्टेंस आना था, करेक्ट। मतलब अभी लगाया नहीं था, लेकिन मतलब दिस वाज द प्लानिंग बेसिकली। तो आई फर्स्ट वेंट टू द रोलिंग मिल हेड कि सर दिस इज द प्रॉब्लम, यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, आपके आदमी टाइम से नहीं आ रहे। अगर मैं कहता कि कंपनी के आदमी नहीं टाइम से आ रहे तो वो कहता कुछ और। बोले हाँ यार दिक्कत तो है इसमें। मैं सर अगर ऐसा हम कर ले तो आपका क्या विचार है। बोलते यार ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। तो मैं कहा ओके। फिर देन आई वेंट टू द पावर प्लांट हेड। वो तो ज्यादा ही बदतमीज आदमी था, सीधा मतलब सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, मैनेजमेंट से बात नहीं करता था, तो व्हाट इज आई एम फॉर हिम। तो फिर मैं उनके पास गया, तो उनको मैंने बोला मैं सर आपका सबसे दूर है प्लांट, और आपके वर्कर बहुत लेट आ रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी भी डाउन हो रही होगी, और या आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। बोले हाँ सर प्रॉब्लम आता है इसमें। तो मैंने कहा वी आर प्लानिंग, अगर आप कहो तो ऐसा कर सकते हैं अपन। बोले सर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। और द थिंग गॉट इम्प्लीमेंटेड एंड वेरी मैनेजमेंट वाज नाइस। वेरी हैप्पी। वेरी नाइस। तो दिस इज हाउ यू शुड वेरी डू। नाइस। अगर मैं उसमें ईगो में रहता कि मैंने कह दिया है या मैनेजमेंट ने कह दिया तो नहीं चलता। करेक्ट. This is so powerful, Lokesh ji. I mean, the idea of being inclusive and taking people along with you rather than top down, taking a top down approach and just implementing something in a dictatorial way doesn't work. This is so powerful, and this is such an important lesson for maybe the young listeners who would be watching this program. So, see, we have talked about execution ability, building credibility, trust. To build credibility, one needs to empathize with the other person, be a good listener, understand the psychology of the person, be inclusive, have humility, and involve the people. I mean, being inclusive, you involve the people so that they are there वन with you. पॉइंट वन पॉइंट मोर अमित जी को, बहुत सारे एचआर, आई नो लॉट ऑफ माय फ्रेंड, बिकॉज आई एम इन द एचआर डोमेन, तो आई नो लॉट ऑफ पीपल। व्हाट दे डू इज दे सिट इन देयर ऑफिस and take decision from there. But Correct. until unless you go to the shop floor, your interaction should be with the shop floor, or you must be aware about the conditions of the shop floor. अगर ये चीज आपने एक बार अंडरस्टैंड कर ली तो your decisions will be better, that the decision will be effective. I understand. Now you understand the suite of the labor. Correct. You can have very good machines, very good management, if you don't have the good workers, Correct. nothing will work. Correct. So how do you do that, Lokeji? How to do that? So you take a round on a weekly basis or on a daily basis. Do you interact or have you made a schedule कि मेरे को हफ्ते में इतनी बार लोगों से बात करना? How do you do it? How should one Sir, go about it? Mr. We have three way approach. One, my team daily goes to the shop floor. Safety person, HR person, admin person, environment, they go to shop floor. मतलब where worker, मतलब during the lunch breaks, tea breaks, they go there. They they get their feedback and the message from the management or the Okay. company. One is this, and every Saturday we are having a very short session with the workers. We call them to the conference room in a respected way. उनको
चाय नाश्ते का अच्छा इंतजाम करते हैं और उनसे उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं और वो क्या कर सकते हैं कंपनी के लिए अच्छा, वो भी उनसे आइडियाज भी लेते हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं उनको बताते हैं, तो दे बिकम आवर ब्रांड एम्बेसडर. This is two point. Third is our reward and recognition. Once it happens once in a month. आर Okay. एंड आर अपन आर एंड आर अपन इसको कहते हैं. तो उसमें हमने 5-6 कैटेगरीज रखी हुई हैं. जो अवार्ड की कैटेगरी है उसमें एक फर्स्ट वन इज द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, Mm-hmm. long service award. We Mm-hmm. award the people who have been associated with us for long duration. Say, मतलब it start from the fifth year up to 25 or 20 or 25 year, whichever is the highest. Then innovation and creativity award, spot award. मान लो किसी ने कोई क्वालिटी कंप्लेंट को बचा लिया उसकी अलर्टनेस की वजह से, तो we give Very nice. that spot award. Very nice. So these are the three things we communicate with the people. And in this monthly program, we have our director or MD present to Very present the award. Like this, we give a certificate and trophy to the participant who is the winner. So our MD or director gives that. Very तो nice. एक मैनेजमेंट का भी इंटरेक्शन लोअर लेवल से हो जाता है और उनका भी एमडी से हो जाता है. Very nice. तो these are the three approaches I employ. Very nice. So see, we have talked about. Um, uh, I mean, the point I'm trying to make, Lokesh, is that as per research, only 0.5% people they reach the CXO level, and you have been consistently at the top in HR in so many companies. So apart from what we have talked about, execution ability, credibility, trust, what else is your secret of success? As I said earlier, hard working is, there is no shortcut. Very nice. Or to adapt to the situation Mm-hmm. or value addition your knowledge, because you understand the HR after 5 years it evolves to the another level. Mm-hmm. So you have to be updated with that. Mm-hmm. और दूसरा क्या, अपने को द न्यू जनरेशन इज थिंकिंग वेरी, दे वांट टू रीच द टॉप वेरी क्विकली, व्हिच इज नॉट Correct. पॉसिबल. Patience. So Okay. patience is needed, and besides patience you need what you call it, uh, Consistency. consistency on the your ability. Look, you should make yourself able. Like you're talking about value addition and knowledge. Yes. So for learning, I mean, the individual should make an effort to improve the skill levels on a regular basis, or so how can a person improve the skills? आप कह रहे हैं कि there should be, the person should stick for 5 years in a role to learn and to add value and keep on growing. So during that 5 years, how can he or she improve his or her skills? How can he or she do that? मेरा इसमें ये कहना है कि बहुत सारे लोग ना आजकल क्या देखते हैं कि यार वो वहां पहुंच गया, वो वहां पहुंच गया, उसको नहीं और करना है. मैं आपको बताऊं लोकेश जी, इवन व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, आई डिड माय एमबीए एंड देयर वाज कैंपस प्लेसमेंट एंड ऑल. So for the next few years, whenever we would meet, the discussion would be that one of our classmates, he has got a package, such a high package, he is earning so much. Yes. This is the topic of discussion that we batchmates. Now for the last 10-15 years we don't do that, but so this is normal. So people normally do that, but like you were saying, so please go on. वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब अब मैं एक चीज और थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ. जहां पे मैं जिस कंपनी में रहता हूँ, अगर किसी आदमी को वहां बुलाया जाता है हायरिंग के लिए, मतलब यू नो द टॉप पोजीशन, मतलब दे डोंट कम इजीली. Correct. उनको अगर पता है कि डॉक्टर लोकेश इज देयर, तो दे विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन. So that much credibility have earned by God grace. You've built in the industry. You've built in the industry all around that people have now. Yes. Okay, And very nice. for the junior level also. Very nice. You say fitter, welder, they ring me, sir, I need a job or कुछ मतलब if you are not having any opening, then please help me in some other industry. So I have been doing that. You have to earn the trust basically. Very nice. Credibility, trust, this pays.
वेरी तो नाइस। अभी आज तक किसी न्यूज पोर्टल से या किसी उससे नौकरी नहीं मिला है। आई वाज डायरेक्टली कॉल्ड बाय द बोर्ड कि वेरी भैया नाइस। आप हमारे यहाँ आओ ज्वाइन करो। तो वेरी नाइस। दैट इज गुड। और अब तो 3 डिकेड हो गए हैं अपने करियर के। वेरी वी नाइस। आर इन द लास्ट लेग ऑफ अवर करियर। सो वेरी नाइस। सो जैसे वैल्यू एडिशन एंड नॉलेज, सो क्या, कैसे वैल्यू एडिशन एंड नॉलेज इंप्रूव कर सकता है कोई? कोर्सेज जो रहते हैं उनसे तो आपको अपडेट रहना ही है। तो ओके। व्हाट इज हैपनिंग इन एचआर। तो पर बट आपको अपनी बुकिश नॉलेज को प्रैक्टिकलिटी में बदलना पड़ेगा। अब मतलब आपने एक किताब पढ़ी, आपने एक कोर्स का ट्रेनिंग लिया, तो थिंग्स नॉट गो एज इट इज, जैसा आपको पढ़ाया लिखाया गया। प्रैक्टिकली यू विल हैव टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी होता है कि हम पढ़ के आए कि अगर किसी ने काम नहीं किया उसको नौकरी से निकाल दो, उसको शो कोई नोटिस कर दो। बट यू यू मस्ट गो बिहाइंड दैट कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई ही इज नॉट परफॉर्मिंग। करेक्ट। अगर वो ड्यूटी पे नहीं आया तो व्हाई ही हैजंट कम फॉर ड्यूटी। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट, नॉट ये कि भाई वो आया नहीं उसको हटा दो। करेक्ट। 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 तो You, दिस यस यस। that's very powerful. That's very powerful to actually understand, empathize with the person. See, obviously, everybody wants to grow in life. If somebody is not performing good, then there has to be a reason. Let's try to understand the reason and remove that reason so that the person can achieve his or her personal goals as well as the organizational. It is so उसमें powerful. उसमें क्या होता है सर, मेरे पास एक आदमी 3 साल से 4 साल से काम कर रहा है, सडनली उसकी परफॉर्मेंस डाउन जाती है। तो मेरे पास डिपार्टमेंट में फोन आता है कि सर वो काम नहीं कर रहा है, ही इज नॉट ऑफ एनी वैल्यू फॉर अस। अब यू प्लीज फाइंड ए रिप्लेसमेंट। तो आई से टू देम कि यू प्लीज सेंड टू हिम टू मी। और उसके बाद उससे डिस्कशन करके बहुत से केसेज में ऐसा हुआ कि मुझे उसको रिप्लेस नहीं करना पड़ा है। Very nice. कुछ और अभी क्या है, एक रिसेंट एग्जांपल मैं बताता हूँ। अवर डायरेक्टर गॉट annoyed with one person as the process manager. So they said कि यार इसका रिप्लेसमेंट ढूंढो, ये काम नहीं कर रहा। मतलब मैंने उनसे पूछा सर क्या आपको लग रहा है, आई फाइंड हिम वेरी हार्ड वर्किंग। बोले नहीं यार उसका कम्युनिकेशन बड़ा वीक है एंड ही नेवर वर्क्स लाइक ए लीडर। वो एक हेल्पर की तरह काम कर रहा है। आई डोंट वांट, आई वांट ए लीडरशिप रोल। सो मैं कहा सर आई फाइंड हिम वेरी गुड, he works very hard. He's every time I found him on the shop floor. So बोलते नहीं आपका बात सही है, शॉप फ्लोर पे रहता है बट उसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं। मगर सर आपको क्या चाहिए उसमें से? बोले वो ही इज रिपोर्टिंग इज नॉट गुड, ये नहीं वो सब कुछ किया। तो मैंने उसको लड़के को बुलाया, बहुत अच्छा लड़का था। उसको बुलाया, मैं कहा सर, मैं कहा भाई साहब आपका तो गड़बड़ चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू यू? बोले सर मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं कहा आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपकी मेहनत जो है वो पहुंच नहीं रही है जहां तक पहुंचाना है उसको। बोले सर फिर क्या करना है? मैं कहा अभी जब एमडी आएंगे तो उस दिन आप मीटिंग में आना, मैं बुलाऊंगा आपको, और जो भी आपको कुछ कहना है, या उन्होंने तो मुझे बता दिया है कि उनको क्या प्रॉब्लम है आपसे, तो आप अपनी प्रॉब्लम उनको बताना है। तो बोले ठीक है सर। तो अगली बार एमडी आया तो मैंने आस्क्ड देम कि सर वो आई हैव आस्क्ड दैट टू मीट यू, और एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यदि अब अगर आप कहोगे तो मैं रिप्लेस कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। बट रिप्लेस करना कोई सोल्यूशन भी नहीं है। तो दे सेड ओके, बुलाओ उसको। बुला के उसको बताया, पूछा कि क्या बात। उसने पूछा सर मैं तो काम कर रहा हूँ, आपको कैसे लग रहा है काम नहीं? तो व्हाट वाज द गैप? जो प्लांट हेड है वो आगे कम्युनिकेट नहीं कर रहा था वैसे जैसे उसको कम्युनिकेट करता था। ओके। अब ओके। वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। नाउ एमडी इज आल्सो हैप्पी और दैट फेलो इज आल्सो हैप्पी, ही इज वर्किंग वेरी वेल। Very nice. Very nice. And यस he would have told so many people that this about this experience, and they would have also got impressed that there is यस somebody to actually take care of. Very nice. Very powerful. यस। Very powerful. See, we also talked about adaptability, and you have had a 3 decade career, adaptability and resilience. So, in ups and downs are always there in any career, whether it's Sachin Tendulkar, Amitabh Bachchan, Virat Kohli, there are ups and downs. And it's people only who are adaptable, who are resilient, that they continue to stay at the top. So, some more thoughts on adaptability with some examples on the challenges that you faced, Lokesh, and how, with your resilience, you were able to overcome those challenges and how you were able to adapt. बेसिकली क्या है सर, आई एम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड बेसिकली, एंड इट इज वेरी टफ जॉब।
करेक्ट और अब होता क्या, किसी दिन रिजल्ट नहीं आया ना, तो एमडी विल कॉल के यार वो आदमी ठीक काम नहीं कर रहा, उसको हटा दो। करेक्ट यू विल गेट दिस डायरेक्ट मैसेज, करेक्ट nothing in between. So now you have to see, you know that person, whether he is capable or not, what are his weaknesses, what are his plus points. So to convince the management and that person also, that is the biggest thing and the biggest challenge also. कई टाइम मैनेजमेंट बोलती है यार हमने ऑर्डर दिया, आप हमारा ऑर्डर नहीं मान रहे, ऐसे भी तो बोलते हैं ना। करेक्ट मैं उनको कहता हूँ सर आपका ही ऑर्डर माना जाएगा, लेकिन मतलब तरीका मेरा होगा। ऑर्डर आपका रहेगा, तरीका मेरा होगा। मतलब ऑर्डर भी आपका हो, तरीका भी आपका हो, वो फिर रिजल्ट जो आएगा वो आपका होगा, मेरा नहीं होगा। आपका ऑर्डर है, तरीका मेरा, तो रिजल्ट जो आएगा वो मेरा आएगा। इफ आई एम नॉट एबल टू डिलीवर, देन हैंग मी अप। तो दिस काइंड ऑफ ability you should have. In you have worked in around 10 companies, Lokesh. So somewhere where the situation was very bad, the atmosphere was very bad, and how you were able to navigate yourself in that environment and come out successfully. Any सर example? एक कंपनी थी हमारी, अभी भी है बेचारी, वो बहुत अच्छी कंपनी है। मतलब कंपनी इज गुड बट देयर फाइनेंशियल आर नॉट गुड। Okay. तो वहां पे आदमी को रिटेन करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। Okay. तो तो वहां पे अपन एंगेज करके रखते थे, भाई खाना फ्री कर दिया, उनका रहना फ्री कर दिया, भैया किराया कंपनी देगी, क्या करोगे? स्कूल Correct. बस स्कूल बस कंपनी देगी। तो सैलरीज वर वेरी लेट, मतलब 2 मंथ, 2.5 मंथ लेट। सो दैट इज हाउ। You were able to compensate in some other way यस यस। to. एंड मैनेजमेंट वाज आल्सो सपोर्टिव, आई सेड कि भैया ऐसे तो सारे लोग चले जाएंगे, योर फाइनेंशियल्स आर नॉट गुड। सैलरी तो सबको चाहिए, फर्स्ट वीक में ही बच्चा का फीस भी आता है, Correct. अगर कोई रेंट पे रहा है उसका किराया भी आएगा, बिजली का बिल भी आएगा। तो दे सेड ओके, ये आप कर सकते हो। तो आई हैव बीन एबल। और एक बड़ा राणा महिंद्रा पेपर था, राणा महिंद्रा यू हैव सीन इन माय बायो। वहां पे क्या हुआ, पोल्यूशन ने हमारा फैक्ट्री बंद कर दिया। Oh, okay. कि जो वाटर पोल्यूशन बहुत हो रहा है, एंड दे सील्ड आवर फैक्ट्री। तो एमडी आए, बोलते शर्मा जी व्हाट इज योर प्लानिंग, लोग तो रोकना है इनको, कैसे फैक्ट्री एक दिन में खुलेगा, 2 महीने में खुलेगा, कुछ पता नहीं है। तो मैंने कहा सर अब तो इसमें कोई रिक्रिएशन फैसिलिटीज ही क्रिएट कर सकते हो, वो कुछ करेंगे नहीं तो खाली रहेंगे। बोले इनके लिए किट विट जो चाहिए सब, बेसबॉल वॉलीबॉल फुटबॉल, जो जो कुछ खेलता, क्रिकेट बैडमिंटन, जो कुछ खेलता है वो करो, और वर्कर के लिए भी वैसा ही कुछ करना जैसा इनके लिए करते हो, मतलब एवरीबॉडी इज नीडेड ना। तो उन्होंने कहा कि शाम को इनके वर्करों की कॉलोनी में तो पेटी वेटी भिजवा दिया करो 2-4, और खाने वाने का कोई दिक्कत नहीं इनको होना चाहिए। कैंटीन से कह दो कि जो भी खाना इनका लगेगा वो खाना देना है, और उसके बाद एक पार्टी अरेंज करो सबके लिए। Okay. तो आई एम बीइंग ब्राह्मण, तो मैं तो नॉन वेज हूँ। और मैं, वो थे सरदार लेकिन वो भी वेजिटेरियन थे, उनकी फैमिली भी पूरी वेजिटेरियन थी। तो कीपिंग इन देयर थॉट इन माइंड, मैंने एक होटल में पार्टी किया और वहां पे सारा कुछ वेजिटेरियन रख दिया। तो एट अराउंड 8:30 दे केम और बोले शर्मा जी क्या चल रहा है? मैं कहा सर ठीक चल रहा है, पार्टी चल रही है कोई। बोले तुमने टंगड़ी वाणी का इंतजाम नहीं किया क्या इनके लिए? मैं कहा सर टंगड़ी वंगड़ी तो हम तो नहीं लेते, टंगड़ी आप भी नहीं लेते। बोले हम, मेरे को और आपको थोड़ा रखना है, इनको रखना है भाई, मुर्गा मुर्गा ऑर्डर किए नहीं किए? तो मैंने कहा सर मैं तो किया नहीं ऑर्डर। तो बोलते हैं अच्छा। फिर उन्होंने कहा, उनका पीए था एक विनय करके, उसको कहा भैया अभी से फटाफट 150 मुर्गे को मंगवा के दे इनको, और 2-3 पेटी 4 पेटी जो भी लगती है वो मंगवा के दे। तो मुझे कह रहा पंडितों वाली पार्टी नहीं चलती है ऐसे। तो दैट वाज ए, मतलब ए लर्निंग फॉर मी। Correct. फ्रॉम देयर आई माय अप्रोच चेंज, कि लोग क्या चाहते हैं वो अपने को करना, हम क्या चाहते हैं वो अपने को नहीं करना है। Correct. I understand. I understand. So thinking from the like you were saying, आप पहले कह रहे थे कि उन लोगों के लेवल पे जाके समझो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, from that. मुझे एक चीज और बताइए लोकेश जी। See, in my career, in my corporate career, what I've seen is sometimes some very good people they fall on the wayside. वो आगे तक नहीं पहुंच पाते हैं because of some mistakes जो अनजाने जाने में हो जाती हैं. So during the career journey, what are the mistakes? What are the key mistakes, top mistakes that you have seen people make, and how to avoid making those mistakes?
टाइम के बाद ना, वंस वंस यू इनटू ए रोल, मतलब ऑन लीडरशिप रोल, तो यू अब क्या एक रिजिडिटी आ जाती है हम्म। कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, हम्म। दूसरा जो कह रहा है वो मुझे सुनना नहीं है। ओके। तो मैं वही कहा, अडेप्टिबिलिटी अडेप्टिबिलिटी आपको जरूरी है। तो उसमें ओके। क्या मतलब मैं नहीं होता, हम होता है। हम्म। तो वो एक रीजन रहता है कि वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो उससे क्या उनका जो गोल, जो उनका ओवरऑल गोल है, उससे भी वो कहीं ना कहीं हम्म। वे साइड चले जाते हैं। ओके। तो ह्यूमिलिटी होना बहुत जरूरी है। यू डोंट हैव टू कीप योर यू हैव टू कीप योर ईगो इन चेक एट एट जूनियर लेवल। और क्या चीज आप बताएंगे? सी वी हैव टॉक्ड अबाउट एग्जीक्यूशन एबिलिटी, क्रिएटिंग ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, and to create trust we need to empathize, we need to have be a good listener, we need to be inclusive, taking people along with us and involve people to break down their resistance. Along with this we need hard work, adaptability, value addition and knowledge, and patience, and converting theory into practice. For a young HR professional who would be joining or who would be watching this podcast, anything else you would like to suggest? So, वही एक हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, ये एक पार्ट है। और दूसरा, इंस्टेड ऑफ चेजिंग अदर्स, यू मेक योर ओन हिस्ट्री। बट Very ठीक है, nice. आप किसी को फॉलो कर रहे हो, आप किसी को, अमिताभ बच्चन को आप मानते हो, नायक मानते हो, ठीक है, बट आपको अपने को नायक बनाना है। हम्म। यू शुड राइट योर ओन, मतलब यू शुड बी काउंटेड हम्म। वेर वेर वर्क। एक होता है ना कि भैया 9 से 5 का ड्यूटी, 8 से 5 का ड्यूटी, हम्म। 8 से 6 का ड्यूटी है, वो करके आपको घर जाना हम्म। है। वो एक सोल्यूशन नहीं है। यू शुड बी Okay. काउंटेड। So there should be value addition that you should be doing over and above what is expected of you. यस यस यस। See now the point is, sir, मुझे बताइए, a young HR professional, maybe not in a manufacturing unit, but let's say maybe working in a city where there are traffic issues, there are so many other issues. Living in a metro, living in a urban city has its own set of problems, and that person is also supposed to do meet his or her own KRAs. जो काम मिला है वो भी करना है. Over and above that, how can he or she find time to add value over and above the KRA? वो कहाँ से टाइम निकाले? नहीं, बेसिकली इसमें 2-3 चीजें हैं। जब जो आपको कोर्सेज वगैरह करने हो तो आपको करने ही पड़ेंगे, वो तो यू हैव टू, मतलब उसका तो कोई कट है नहीं, शॉर्टकट है नहीं, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है, आज के बच्चे क्या करते हैं, बहुत टाइम अपना सोशल मीडिया पे ज्यादा करेक्ट। देखते हैं। उसमें करेक्ट। कुछ चीजें सही भी होती है, कुछ खराब भी होती है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, वो एक किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में उनको लगाना चाहिए अपने आप को। हम्म। एक ये चीज हो गया। दूसरा क्या, जो अपने सीनियर्स हैं उनसे उनको सीखना चाहिए। कई हम्म। बार जूनियर को भी क्या आता है, यार ये मेरा बॉस है, इसको कुछ आता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हम्म। वो कुर्सी पे अगर बैठा है तो कुछ ना कुछ आता होगा, तभी उसको रखा गया है। आप करेक्ट। यू माइट हैव हर्ड लॉट सो मेनी टाइम। आप, मैं तो हर रोज सुनता हूँ, डिपार्टमेंट हेड बोले, सर वो हमारा डिपार्टमेंट है, उसको कुछ आता ही नहीं है, आपने कहाँ से बैठा दिया उसको, उसको तो कुछ पता सता ही नहीं है, आई एम बेटर देन हिम। तो ये चीज आप लोग को छोड़नी पड़ेगी। और आपने, जो आपका सीनियर है, वेदर यू एग्री विद हिम और नॉट, यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो। उनके करेक्ट। एक्शंस को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनकी साइकोलॉजी को यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब किताबों से जितना सीखते हो उससे ज्यादा, वंस यू इनटू द फील्ड, वहां पे जो आप सीखते हो बहुत ज्यादा मैटर करता Very है। nice. Very nice. See, you talked about learning from seniors. So, mentorship. How important is it for a person to have a mentor? गुरु तो होना ही चाहिए। Mhm. मतलब गुरु तो होना ही चाहिए ना। मतलब इनके, आपको कोई डिफिकल्टी आ रही कुछ, मतलब देयर शुड बी वन प्लेस वेयर यू कैन डिस्कस। ठीक है, आपको मतलब राय और चाय इंडिया में बहुत मिलता है, कहीं भी आप जाओ तो राय और चाय पहले मिल जाएगा। बट आपको कंस्ट्रक्टिव राय चाहिए, मतलब कंस्ट्रक्टिव राय वो आपको आपका गुरु ही दे सकता है। And how to find a guru? How to make a guru? अब सर इतनी लॉन्ग जर्नी में, जैसे अब मैंने आपको बताया, मेरे जो आइडल थे, जो मेरे गुरु थे, मिस्टर गुप्ता, तो मैंने उनको ही फॉलो किया, बहुत टाइम तक फॉलो किया। और कुछ आता था, मुझे इशू आता था, तो आई ऑलवेज वांटेड टू Even डिस्कस विद after हिम। changing the company. यस यस, नो नो। तो कंपनी, वो पर्सनल बॉन्डिंग अलग है सर, कंपनी तो चेंज होता रहता है। Very तो nice. अपन डिस्कस करते हैं, अब भी करते हैं, अब भी बहुत सारे लोग हैं मतलब आप बहुत जगह बात नहीं कर सकते, कुछ जगह बात कर सकते हो। वो Correct. कुछ जगह आपके Correct. पास होनी चाहिए। वो Correct. आपके फील्ड के लिए भी कुछ जगह होनी चाहिए,
अगर फैमिली इशू है तो आप नेचुरली घर में बात करोगे, अगर कोई प्रोफेशनल इशू है तो किसी प्रोफेशनल से ही बात करोगे, तो करेक्ट दैट काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड, वो आपको किताब से नहीं मिलेगा। करेक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ सर, एक फार्मा कंपनी का, मैं इसमें आपने देखा होगा, तो आई वाज इनटू एचआर और आई वाज वर्किंग इन हिमाचल। तो वहां पे मैंने हमारे जो लोग जाते थे रेगुलेटरी के, उनको मैंने कभी कहा कि कभी तुम्हारे को शिमला में काम वाम फंसे तो मेरे को बता देना, तो सम पीपल नो मी। तो कोविड का टाइम था, अब उनको लाइसेंस नहीं मिल रहा था, ओके। और देयर वाज ए ह्यूज ऑर्डर। कोविड के टाइम में फार्मा इंडस्ट्री को तो करेक्ट ह्यूज ऑर्डर आते थे। करेक्ट। तो वो मिल नहीं रहा था, अटक गया उनका कहीं मामला। जो आदमी हमेशा जाता था वो बैठा था वहां, उसने मैनेजमेंट को फोन किया कि सर नहीं हो रहा है ये काम। तो मेरे डायरेक्टर आए और तो मतलब कंपनी में, जहाँ पे जिस कंपनी में मैं बैठता था, वहां आए तो मुझे बुलाया कि सर गाड़ी में बैठो। मैं कहा सर व्हाट हैपेंड? बोले शिमला जाना है। मैंने कहा सर पर्पज? बोले आप रास्ते में बताऊंगा, आप बैठो। तो वो क्या ऑफिस का ड्रेस था, सारा था। मैं कहा सर मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, शूज भी नहीं है, मेरा घर भी वहां से कोई 4-5 किलोमीटर दूर था, ज्यादा नहीं था। तो मैं कहा सर मेरे को गिव मी टाइम टू चेंज, और कपड़े उपड़े कैरी कर लेते हैं, कुछ इनर गारमेंट्स वगैरह तो चाहिए होंगे ना। बोले सब रास्ते में दिलवा दूंगा, कुछ नहीं लेना है। ठीक है। चले तो उन्होंने पूछा आपका कौन जानकार है? मैं कहा चीफ सेक्रेटरी जानकार है। बोले, यार चीफ सेक्रेटरी जानकार है तो बहुत बढ़िया बात है, तो एक बार आप फोन कर दो। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को फोन किया कि सर हमारा वहाँ काम अटका हुआ, अगर आप फेवर कर देते तो हमारा काम हो जाता। बोले ठीक है यार, हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने पीए को बोला कि वहां फोन कर दो और ये इनका काम कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं सर, मतलब कम्युनिकेशन और मिसकम्युनिकेशन कैसे होता है। तो ये एकदम खुश हो गए, चीफ सेक्रेटरी ने फोन भी उठा लिया, आगे इंस्ट्रक्शन भी दे दिया। तो इनका जो आदमी वहां बैठा हुआ था उसने कॉल किया कि सर वो चीफ सेक्रेटरी का फोन तो नहीं आया था, उनके पीए का फोन आया था, तो मुझे नहीं लगता काम होगा। यू सी नाउ, अभी द मोमेंट ही सेड दिस थिंग, मेरे डायरेक्टर का मेरे से वो बोला ये तो फालतू का आदमी ले लिया मैंने इसको, मैंने फालतू का आदमी ले लिया, ये इसका कोई फायदा नहीं है। और वहां से जहां फोन आया था, 4 घंटे का रन था हमारा, तो मतलब 1-1.5 घंटे के बाद वो मेरे से बोलना बंद हो गए, शिमला तक बोलते नहीं बोले बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद रात को पहुंचे थे हम वहां पे, तो हाउस हाउस ले लिया। तो सुबह मुझे कहने लगे कि यार सीएम के पास जाना है, तैयार हो जाओ सारे लोग। वी वर 3-4 पीपल। तो मैं गया, सीएम के वहां चले गए। तो सीएम के पास गए तो जो सीएम का पीएसओ था वो ही वाज नॉन टू मी। तो मेरे को आया, शर्मा जी आप कहाँ कैसे घूम रहे हो? मैं गया कंपनी की तरफ से आया हूँ। तो बोले आओ आपको मिलवा देता हूँ साहब से आप। मैं गया, वो तो पूरी टीम के साथ मिलना, और एमएलए इज आल्सो विद अस। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो बोले यार एक काम करो, तुम तो नमस्ते कर लो ना, कंपनी के बाद में मिल लेंगे। तो मैं गया और मैं जाके नमस्कार किया। तो उन्होंने बोला कैसे भाई? मैं कहा सर वैसे ही आज आए हैं, कंपनी वाले आए हैं, उनके साथ ही आऊंगा, बस नमस्कार करने आ गया हूँ। कह रहे ठीक है। तो मैं नमस्कार करके आ गया, इनका नंबर सबसे लास्ट में आया। और जितनी देर में मैं कुर्सी से उठ को इनको विदा किया था और वापस बैठा, उतनी देर में ये बाहर भी आ गए। यू वेरी नाइस। अंडरस्टैंड ना, तो क्या वेरी नाइस। डिस्कशन हुआ होगा। वेरी नाइस। उसके बाद इन्होंने कहा जी चलो चलते हैं वहां पे, और एमएलए को साथ लिया। एमएलए की गाड़ी चल रही है, पीछे ये बैठ गए, हम भी बैठ गए, हमारी भी एक गाड़ी थी, उसमें चले गए। वहां पे चले गए आयुष भवन। और आयुष भवन गए, वहां पे जाके हमको तो इन्होंने नेगलेक्ट कर रखा था, अनवांटेड आदमी थे हम तो हम रिसेप्शन में बैठ गए, अंदर चले गए। अंदर जाके इनका क्या बहस वहस हुआ मुझे नहीं पता। उसके बाद ये बाहर आए तो मतलब टोटली डिजेक्टेड के यार ये तो सारा नुकसान हो गया, मतलब 40-50 करोड़ रुपए का ऑर्डर था। तो डिजेक्टेड, बहुत ज्यादा परेशान। तो मैंने उनको कहा कि सर अगर आप कहो तो ये काम हो सकता है। बोले कैसे हो सकता है? मैं कहा आप जाके सॉरी बोल दो अंदर। बोलते नहीं यार तुम देख लो, तुमको कुछ करना है, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं तो मेरे को कड़वा ही रहने दो। मैं कहा ठीक है। मैं कहा अच्छा सर आप यहीं रहना, मैं जरा मिल के आता हूँ। मैं अंदर गया, मैं उनको बोला सर अपोलाइज अपोलाइज अपोलोजाइज फ्रॉम माय फ्रॉम द साइड ऑफ माय मैनेजमेंट, और मेरे को इस तरह से। बोले यार वो तो हमको भी अपना नौकर समझे, ऐसे थोड़ा काम होता है, काम करेक्ट। तो डिपार्टमेंट के हिसाब से होगा। तो बोलते अब क्या करना है? मैं कहा सर करवाना है काम। कह रहे ठीक है। तो उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर को बुलाया, तो साइनिंग अथॉरिटी थे टेक्निकल। बोले शर्मा जी हैं हमारे नॉन आदमी है और उनका काम करना है। तो उन्होंने बताया सर इनके तो बड़ा इशू आ रखा है। बोले आप इशू को सॉर्ट आउट करके
इसको करना है। तो उन्होंने जो थे डॉक्टर सुंदर शर्मा थे, वो मेरे को बोले कि भैया देखो तुमको अपने हिसाब से चाहिए हमारे हिसाब से चाहिए। मगर ये दोनों के हिसाब से चाहिए, ना तो मेरे हिसाब से चाहिए ना आपके हिसाब से चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन है, मेरा काम भी हो जाए और आपके बात भी कोई ऐसी बात ना है कि आपने कोई गलत लाइसेंसिंग कर लिया, कोई गलत कंपोजिशन को पास कर दिया। बोले ठीक है, क्या लाया मेरे लिए? उस टाइम क्या होता था सर, सैनिटाइजर और ये ले जाने होते थे। करेक्ट। जहां भी आप जाते, सैनिटाइजर, मास्क, फ्लोर क्लीनर जो आते थे उस टाइम पे, तो गाड़ी में रखे थे बहुत। तो मैंने अपने डायरेक्टर को फोन किया, मैंने ड्राइवर को फोन किया, मैं कहा भैया वो सैनिटाइजर की एक पेटी में लाया हूँ, वो लेके आ तू यहाँ पे। तो डायरेक्टर ने फोन उठा लिया, उनसे छीन लिया। बोले क्या बात हुआ? मैं कहा बात हुआ, वो काम करेंगे, वो सैनिटाइजर मुझे चाहिए। बोले हम तो यार सोलन पहुंच गए अभी। तो मतलब वो मैं इतना भी वेट नहीं कर सके 10 मिनट का, वो सोलन पहुंच गए। तो बोलते अब मैं सुबह कुरियर करवा देता हूँ। मैं कहा ठीक है। तो 40 हमारे लाइसेंस थे सर, 38 हम लेके आए। वेरी नाइस। दो नहीं पास हुए। वेरी तो नाइस। मतलब आप देखो ना, ये क्या था, कम्युनिकेशन में मिसकम्युनिकेशन था। अगर करेक्ट। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है तो मतलब उसका पीए फोन करेगा, चीफ सेक्रेटरी खुद तो फोन नहीं करेगा ना। करेक्ट। तो करेक्ट। करेक्ट। उस आदमी ने ये बताया और हमारी मैनेजमेंट ने मान लिया यार पीए की क्या वैल्यू होती है। तो ये करेक्ट। आज आई थिंक लंबा हो गया थोड़ा सा। नहीं तो ये, सी अगेन द लेसन हियर इज लाइक यू वर सेइंग कि आपको जो भी जॉब ऑफर्स या आपने कोई चेंज किया है, इट्स बिकॉज ऑफ द क्रेडिबिलिटी दैट यू हैव बिल्ड, एंड दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ क्रेडिबिलिटी. सो व्हाट इज दैट सीक्रेट? जस्ट ट्राइंग टू हेल्प पीपल, जेन्युइनली लोगों की मदद करना, ये सबसे जरूरी है. मतलब ये हाउ टू बिल्ड दिस ट्रस्ट, दिस क्रेडिबिलिटी, नॉट ओनली इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर वर्किंग बट जनरली ऑल अराउंड यू. सर इसमें ना नॉर्मली क्या रहता है, आप जहां भी आप काम करते हो, आपके जो मान लो मैं आई वर्क इन ए प्रीवियस कंपनी, दे गुड, दे से गुड अबाउट मी। तो उससे आगे आगे जाता रहता है यार, कोई अच्छा आदमी देखना है किसी के लिए, बोले यार वो है, अगर उसको एक बार कांटेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें क्या रहता है सर, जैसे काम करने में मैनेजमेंट और जो मेरी वर्क फोर्स है, जो मेरे एम्प्लॉइज हैं, उनके बीच में वी वर्क एज ए कम्युनिकेटर करेक्ट. और कंड्यूट। तो उसमें क्या है, हमको मैनेजमेंट की एस्पिरेशन को भी रखना है और जो हमारी वर्क फोर्स है उसकी एस्पिरेशन को भी रखना है। तो उसका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो मतलब जैसे क्रिएटिव मैंने अभी सॉल्यूशन, आप, क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालना जिससे दोनों चीजें हो जाएं. हाँ दोनों आप खुश रहें दोनों। तो उससे अंडरस्टूड. मैनेजमेंट भी, अगर मान लो मेरी पुरानी कंपनी में मेरी प्रेजेंट मैनेजमेंट फोन करके बोले बोले यार वो कैसा आदमी, बोले यार बहुत अच्छा है। तो बट दैट इज व्हाट यू अर्न। करेक्ट. जैसा आपने कहा कि वैल्यू एडिशन ऊपर से दिखाओ, जो काम दिया गया है उससे ज्यादा कुछ करके दिखाओ. ये नहीं कि 9 to 5 जॉब है, बस जाना है आना है. एड सम जी वैल्यू. Very nice. So, sir, जी। it has been almost an hour since we started talking, and there are so many things that we can continue talking, but we have to maintain the time limits that we have set for ourselves, Lokeshi. So, जी जी जी। uh, thank you so much. It was a very interesting discussion, and these are real life examples. I'm sure. See, reading theory in a book is one thing, but listening to these real life examples, they are going to benefit so much to our viewers. So, thank you. Thanks for giving us time, Lokeshi. Thank you very much. You also, can you give me the platform to bring out of these things out from me? अदरवाइज बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है कहीं ये बात करने का। तो Correct. यू प्ले गिवन मी ए प्लेटफॉर्म, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। Thank you, sir. और और आपकी कंपनी अच्छा काम कर ही रही है, तो उसको और अच्छे से आप करो तो बहुत मजा आएगा काम करने का। Right, sir. Thank और you. in future we may also have some association with you for leadership training and all that. Thank So you, sir. you are Thank you doing so it. much. You are doing a fantastic job. Please Thank you, keep sir. on doing it. Thank you, Thank you sir. very much.